ಜಮೀನು ಕಬಳಿಸಿದ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಇನಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಜಾಹಿದಾ ಬೇಗಂ ಅವರು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇನಾಮಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 60, 61, 62ರಲ್ಲಿ 43 ಎಕರೆ 4 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ, ಮುತ್ತಜ್ಜ, ತಾತ, ಮುತ್ತಾತ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಗುಂಡಪ್ಪ, ನರಸಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ನೀಡಿ ಉಳಿಮೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ನೀಡಿದ್ದು ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು 1951ರಲ್ಲಿ ಇನಾಮದಾರರು ಕಚ್ಚೇದಾರರು ನಡುವೆ ತಕರಾರು ಆಗಿ ದಾವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 1998ರಲ್ಲಿ ಬೋಗಸ್ ಆದೇಶ ಪಡೆದು ಆದೇಶ ರಚಿಸಿ ಅದರ ಕಡತವೂ ಏನೂ ಇರದೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪಡೆದು ಯಾವ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಣವೂ ಇರದೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 26/9/2022ರಂದು ಕಚ್ಚೇದಾರರು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಇದ್ದ ಪಹಣಿಯನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡದಂತೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನಾಮದಾರರು ಕಚ್ಚೇದಾರರು ದಾವೆ ಪ್ರಕರಣವು ಸುಳ್ಳು ದಾವೆ. ಕೇವಲ ಕಚ್ಚೇದಾರರು ತಹಶೀಲ್ ಬೀದರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಇನಾಮದಾರರು ಕಚ್ಚೇದಾರರು ದಾವೆ ಪ್ರಕರಣವು ಸುಳ್ಳು ದಾವೆ. ಕೇವಲ ಕಚ್ಚೇದಾರರು ತಹಶೀಲ್ ಬೀದರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಇನಾಮದಾರರು ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ದಾವೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರ ಮೆಮೊ ದಿನಾಂಕ 2/11/2022ರಂದು ಶಿರಸ್ತೇದಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ದಿನಾಂಕ 3/11/2022ಕ್ಕೆ ಗೋರ್ನಳ್ಳಿ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 60, 61, 62 ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂಬರ್ಗ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆದೇಶ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ತಹಶೀಲ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕಡತ ಕಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಖರೀದಿದಾರರು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹಣ ನೀಡಿ ಎನ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಡತವು ಓಂಕಾರ್ ಅವರು ಖರೀದಿದಾರರ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡತಗಳು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೇಳಲು ಹೋದ್ರೆ ನೌಕರಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆದರೂ ಏನೂ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೇನು, ನಮಗೆ ಕಡತಗಳು ಬೇಕು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಎನ್ಎ ರದ್ದತಿಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ದಾವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು WP ನಂಬರ್ 202774/2024ರ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ 14/10/2024ರಂದು ಆದೇಶವು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇನಾಮ್ ಅಬುಲೇಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣ ದಾವೆಯು ಅಪಲೆಂಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಇನಾಮದಾರರು ನಾವು ದಿನಾಂಕ 11/11/2024 ಬೆಂಗಳೂರು ಕಲಬುರಗಿ ದಾವೆ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಾವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 472/2024, 424/2024 ದಾವೆ ಪ್ರಕರಣ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಗೋರ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 60, 61, 62ರ ಈ ಜಮೀನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀದರ್, ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಬೀದರ್, ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀದರ್ ಇವರು ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಇನಾಮದಾರರು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾವೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಸಲು ಜಿಪಿಎಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಜಿಪಿಎ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಜಿಪಿಎ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವರೇ ನೇರ ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 61, 62ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ದಯಮಾಡಿ ವಹಿವಾಟು, ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಲೇವಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, ಗಿಫ್ಟೆಡ್, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಡೀಡ್, ಜಿಪಿಎ, ಎಸ್ಪಿಎ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಜಮೀನಿನ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಕೂಡದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಜಮೀನು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಇನಾಮಿ ಹೊಲ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಖರೀದಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಹಮೂದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಹುಸೇನಿ, ಜಹಾಂಗೀರ್, ಮೆಹಮೂದ್ ಹುಸೇನ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಆದಮ್ ದಬಿ, ಅಥರ್ ದಬಿ, ಅನ್ವರ್ ಶಾ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया जो ये प्लेसमेंट हो रही है, और मेरी ये अपील है कि मेरी जो ये बात है ज़मीन की बात है,
ज़मीन में जो है सो जो कब्ज़ा करे हुए है, बहुत जो है सो उनका नाम शशि है, शौकत है और गौस है। गौस जो है कॉलेज के है, मनियार तालीम के हैं, उन्होंने भी कब्ज़ा करे हुए है। और शशि उसेडी है जो उन्होंने भी ज़मीन पे बीजेपी के लीडर है, उन्होंने जो उनका प्रेशर पड़ रहा ज़मीन पे, हम जहाँ भी जा रहे हैं कोर्टों में, उन्हें जो है सो पैसे दे के जो है सो काम रुका दे रहे हैं। हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से कि हमारी ज़मीन हमारे को होना है और कुछ भी नहीं। और रहा सवाल जो है सो ये है, रजिस्टरियाँ भी हो जा रही, जाली रजिस्टरियाँ हो जा रहे हैं, सब जो है सो जाली फ्रॉड हो रहा। और ये सब जो है सो ये कॉर्पोरेटर हैं इन लगा, एक कांग्रेस का है जिसका नाम है शौकत है, जिसका नाम है शौकत है। उन्होंने भी जो है सो क्या कर रहे हैं, पैसे और पॉलिटिशियन का पावर लगा के जो है सो हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर जो है सो चुप उंगलियां करते जा रहे हैं, वो काम को उल्टा कर दे रहे हैं। ये एक हो गया। और रहा सवाल जो है सो धमकियां दे रहे हैं किसको, जो हमारे काम करने वालों को ज़मीन पे, कि जो है सो हम पॉलिटिशियन का प्रेशर डाल के, और उन लोगों के पीछे भी जो है सो एमएलए भी है, एमपीएम भी है लगे हुए, क्योंकि जो है सो इन लोगों की सपोर्ट में है और कुछ भी नहीं। बस ये खाली कानून के दायरे में रह गया। और ओमकार को तो जो है सो चुप होना बोल के पकड़ लेके उसके बाद में छोड़ दिया उसको। उन्हें घर में अच्छा अय्याशी कर लेते हुए बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं है, पैसे ले लिया बैठ गया। और हमारे अपील ये है कि हमारी ज़मीन हमारे को होने का है, गवर्नमेंट से अपील है बिदर के। और केस जो है सो जब फाइल करे हम लगा, केस फाइल चल रहा है, जब कहाँ बेंगलुरु में केस चल रहा, गुलबर्गे में जो है सो क्या बोले हमारे को जो है सो क्या हमारी ज़मीन जो है सो वो पेपर खाली फिराते जा रहे हैं, जामी जा रहे हैं, नहीं यहाँ नहीं, बेंगलुरु में होता, बेंगलुरु में नहीं, इधर होता, बस ऐसे ही फिरा रहे हैं, क्योंकि उन लोग के डर में है। हमारे बड़ों के साथ भी ऐसी करे, और हमारे बड़ों के साथ भी ऐसी चीज करे, हम लोग के संगात भी ऐसी चीज कर रहे हैं। हमारे को अदबन गुजारिश है कर्नाटक की गवर्नमेंट से कि हमारी ज़मीन हमारे को होने का है सर, और कुछ नहीं चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी प्लेसमेंट हो रही, और हमारी प्लेसमेंट वालों का शुक्रिया जो हम लोग की बात सुन रही। गवर्नमेंट वाले जो है सो गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, जो है सो वार्ड नंबर 26 है शशि का, और शौकत का जो है सो 25 है। इन लगा जो है सो इलीगली टॉर्चर कर रहे हैं। जो पेपर हम जहाँ निकालने जा रहे हैं वहाँ पर जो है सो क्या बोल दे रहे हैं, जो है सो पेपर ही नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है बोल के बोल दे रहे। हालांकि इनामी ज़मीन है, ये रजिस्टरी हो जा रही, जाली रजिस्टरी हो जा रही। परदादा की है ये, परनाना की है ये, मोहम्मद खादर हुसैन। सबसे पहले मोहम्मद गुलाम हुसैन आते, मोहम्मद गुलाम हुसैन, उनके 3 बेटे थे, मोहम्मद खादर हुसैन, मोहम्मद साहेब हुसैन, मोहम्मद शमशुद्दीन हुसैन। उसके बाद से ऐसी पीढ़ियां चल लेते हुए आ रही। लगभग कितने साल हो गए अंदाजा? तकरीबन साहब ये एक 80 साल 70 ईयर हो रहा सर, 70 साल 80 होगा समझो। पुलिस सेक्शन उससे पहले दिए तो ये। हाँ बोलो, अब आपके पास जमीन के क्या पेपर है जी? आपके पास क्या है? जो भी कोर्ट में दाखिल कर जो भी है सर, पेपर है हम लोगों के पास, मगर उसको जो कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं तो जो सो और दूसरे लेके ऊपर है, जब दूसरे लेके आने जा रहे हैं जो सो ये प्रेशर जो सो डाल दे रहे हैं, कौन कॉर्पोरेटर डाल दे रहे हैं, शशि शौकत फाइल। और रहा सवाल सर कोर्ट में, तो कोर्ट ऐसा दिख रहा मेरे को जो है सो इन लोगों का कोर्ट है, किसका, शशि शौकत का, पॉलिटिशियन का कोर्ट दिख रहा, कोर्ट गवर्नमेंट का नहीं दिख रहा। हमारे दादा के जमाने से हमारे जब से जो है सो लीडर जो है सो ये पूरा ऐसी लीडर, जब लीडर जैसा हाथ में आ गया वैसी जो है सो कानून को हाथ में ले लिए। जहाँ भी जो है सो जा रहे हैं पेपर, नहीं यहाँ नहीं होता वहाँ जाओ, वहाँ नहीं होता यहाँ जाओ, ये चुप जो है सो फिल्मों का सिस्टम हो गया सर, और कुछ भी नहीं। मेरे को ये अपील है कोर्ट से, नागप्पा के बेटों को बुला के पूछो। बेंगलुरु हाई कोर्ट में भी है क्या केस? जो केस लर्निंग चल रहा सर, उसमें जो है सो फिर एनए जो है सो एनए भी डाले जो है सो, तो भी केस चल रहा है सर, रजिस्ट्री भी चल रही है यहाँ पर। अब ये इलीगल नहीं तो क्या हो रहा सर का, मेरे को ऐसा दिख रहा गवर्नमेंट जो है सो इन लोगों के हाथ से चल रही, वैसा दिख रहा है शशि और शौकत के हाथ से। हमारे दादा परदादा के जमाने से वही चल रहा, हमारे परदादा दादा भी खत्म हो गए, हमारे पूरा खानदान खत्म हो गया। और हाईकोर्ट से भी पास हो गया था सर, उसके बाद में भी जो है सो उसको भी क्या कर दिए, पेंडिंग में डाल दिए केस। टोटली जो है सो ये पॉलिटिशियन की वजह से हो रहा। शौकत जो है कांग्रेस के लीडर है और बीजेपी के लीडर इनो है शशि। नागप्पा गुंडाप्पा के बच्चे मिले हुए हैं उनसे, तभी तो हो रहा है काम।
जमीन बिदर के अंदर है, गोरनल्ली के बाद सैदप्पा नागप्पा को हमारे ससुरे काश करने दिए थे साहेब हुसैन। वो लोग क्या करे, कब्जा कर लेके दूसरों को बेच दिए बोल के हमारे को तकलीफा दे रही। वो कोर्ट से केस आया हुआ आया, बोलते सुमा ये क्या पंतुलू बोल के है एक नागप्पा का बेटा, उन्हें बोला जाओ कोर्ट को जाओ, जो करते कर लो, उससे हमारे को मतलब नहीं है, हम नहीं देते। सैदप्पा का बेटा भी वही बोल रहा, मल्लप्पा का बेटा भी वही बोल रहा। उसके बाद में अब मालूम हो रहा हमारे को के बेच दिए जमीन बोल के। हम जमीन के हकदार हम हैं, हमारे को चाहिए। हमारे लिए बहुत बड़ी मेहरबानी होंगी आप लोगों की, हमारी मदद करेंगे तो हमारे मासूमों की दुआ लगेंगी। मेरे शौहर का भी इंतकाल होगा, सब मर गए, ये बच्चे हैं बड़े जितने भी हैं मर गए। अब हम लोग हैं औरतें क्या करेंगे, जितना करना है उतनी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग मेहरबानी होती बहुत बहुत, आप लोग करें हमारी मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। बहुत बहुत भी बहुत हम परेशान हैं, हमारे मासूम बच्चे खाने को खाना नहीं है, और बोलते बंडिया रक्षा चला रही हूँ, कम चना जोड़ रही, ऐसी जिंदगी बसर करें साहेब हुसैन की नस्ल। ये गवर्नमेंट हम यहाँ के बिदर के हम काजियाँ हैं, खजायत है गुलाम हुसैन, खाजी खानदान का ये हाल हो गया है। हमारे ऊपर बहुत बड़ा रहम करो, आप लोगों को बहुत बहुत वो होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये गवर्नमेंट। मेरा नाम जाहिदा बेगम और मैं साहिब हुसैन की बहू हूँ। गुलाम हुसैन मेरे दादा ससुरे हैं, उनकी ज़मीन है ये 60, 61, 62 गोरनली। हम लोग तकरीबन 25-30 साल से फिर रहे, हमारे को गोल फिरा दे रहे हैं लोग, अंदर अंदर बेच ले रहे। और इसमें जो है ख़रीद रहे वालों का गौस नाम भी है और जिलानी भी है, और एक क्या नाम है कि मेरे को याद नहीं है। इन लोग अदालत में केस आया, फाइल आई तो अदालत से गायब कर दे रहे। हम जाके पूछे तो बोल रहे नहीं है, हम तुम्हारी फाइल ही नहीं है बोल के बोल रहे। तो ये कानून क्या कर रहा साहब, ये हम खाली हैदराबाद से यहाँ से वहाँ फिर रही बस। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी जल्दी से जल्दी हमारी ज़मीन हमारे को दिला दी। अब ये जो ज़मीन है ऑलरेडी आप सेटलमेंट कर ले बोल के यहाँ पे बात करिए बिदर में। नहीं झूठ है, गलत है, वो हमारे गलत बात है ये। और कौन बोल रहे हमारे सामने कोर्ट में लाइए, हम सामने ठहर के उनसे बात करेंगे। और एक बात क्या है, मेरे पे इल्ज़ाम भी लिए कि मैं साइन करके पैसे लिए करते, वो कौन दिए मेरे को, कोर्ट में हाजिर होने दो, मेरे सामने बात करने दो। ये सब पूरे बच्चों में मेरी वैल्यू नहीं रह रही कि इन्हों जाके पैसे ला ले रही बोल के। तो कौन दिए मेरे को, उस सामने खड़ा करो आप, मैं बात करती हूँ उनसे। अब ये ज़मीन कौन कौन बेच रहे हैं? अभी ये ज़मीन तो मल्लप्पा गुंडप्पा उनके बच्चे जो है ये जिलानी उनको बेचे, जिलानी वो लोग दूसरों को बेच रहे। और हुसैन, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अमजद हुसैन। मैं जो है सो ये हमारी ज़मीन पे जो कब्ज़ा कर लिए और हमको परेशान कर रहे हैं। ये ज़मीन गोरनल्ली बी और सर्वे नंबर 60, 61, 62, और ये ज़मीन पे जो है सो हमको परेशान कर रहे हैं। और इसको जिसको हम चलाने दिए थे, और हैदराबाद में भी जाते आते हम, और हमारा कारोबार वहाँ पे है, इसके लिए दूसरों को दिए तो हमको धोखा दे दिए वो लोग। और जो है सो उनके सैदप्पा मल्लप्पा उनके बेटों को जिम्मेदारी दिए थे हम, तो इस ज़मीन पर जो है सो वो दूसरों को सेल कर दिए और वो हमको परेशान कर रहे हैं। वो दूसरे भी जो है सो ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिए और वो सेल कर रहे हैं बैठ के, और उनका नाम है शशि, शौकत और शेख गौस। ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं। हम कोर्ट से अपील कर रहे हैं और डीसी में भी डाले, एसी में भी डाले सर हम, तो हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। उसके पेपरा भी है हमारे पास, तो हमको जो है सो फाइल भी जो है सो एक ओमकार बोल के है तहसील ऑफिस से, वो फाइल भी हटा दिए वहाँ से, और हम उसके भी फिर केस डाले, उसको भी अरेस्ट करे, फिर उसको बेल भी मिल गई। सर हमको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हम कर्नाटक गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमको इंसाफ दिलाइए और हमारी ज़मीन हमको दिलाइए। और कॉन्फ्रेंस का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि पत्रकार हमारी कोऑपरेट कर रहे हैं। इस पत्रकार के ज़रिए से, हम मीडिया के ज़रिए से हम कर्नाटक सीएम से अपील कर रहे हैं, कर्नाटक गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमको इंसाफ दिलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम गरीब लोग हैं। गोरनल्ली बी
जो बिदर साउथ में आता है, सर्वे नंबर 60, 61, 62, जो ज़मीन है 43 एकड़ 4 गुंठे, ये ज़मीन इनामी ज़मीन है। इसके रियल ओनर मालिक के जो जितने भी यहाँ पे बैठे हैं ब्लड रिलेशन में कंसल्ट है। इनकी जो ज़मीन है तकरीबन 60-65-70 साल से केस चल रहा है, टोटल 70 साल से। इसमें इनकी ओन ज़मीन इन्होंने ज़मीन करने के लिए दिए थे, लिहाजा 3 लोगों का नाम बता रहे, नरसप्पा, मल्लप्पा, गुंडप्पा, ये लोगों को करने दिए थे। इन्होंने हाल तकरीबन 10-15 साल तक आते मिलते करते रहे। अंदर का अंदर आप मुझे नहीं खेल कर, चाहे वो बिदर एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो जिलाधिकारी हो या एसी साहब हो या तहसीलदार साहब हो, इनको मालूम ही नहीं, अंदर अंदर ज़मीन बेच दिए, बेचकर ज़मीन हमारी है। और जिस तरीके से बिदर के पॉलिटिशियन जिस तरीके से पॉलिटिशियन प्रेशर डालकर, चाहे वो बिदर एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जो आग नीचे खेल कर जो ज़मीन के ऊपर बिदर कोर्ट हो, गुलबर्गा कोर्ट हो, बेंगलुरु कोर्ट हो, ये कोर्टों में केस चलने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं करता, खाता है म्यूटिशन, रजिस्ट्री डुप्लीकेट मारती, बोलते सरासर गलत बात है और ये बड़ी चीमारी डालने की बात है। तो मैं बिदर एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूँ, जो बिदर के एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो माननीय जिलाधिकारी हो, ये ब्लड रिलेशन है ओनर के, ये जमीन इनामी जमीन है, इन्हों बेचे नहीं करे नहीं, सामने वाले इलीगल खाते मोटिशन है, चाहे वो सामने वाला करा कैसा बेचा कैसा, टोटल इन्हों ओनर है बोल के कंसल्ट टोटल डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। सिर्फ बिदर में पॉलिटिशियन के दबाव पर काम चल रहा है। हम बिदर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, इनकी जमीन इन्हों ओनर है, इनकी जमीन इनको हक मिलना, अगर नहीं मिला तो ओनर को लेकर हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मूवमेंट करना पड़ा, होराट करना पड़ा, तो भी करने के लिए एक लम्हा भी नहीं सोचेंगे। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हकदार का हक दिलाने में अगर नाकाम हुआ, तो हम आने वाले दिनों में बिदर में डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए भी तैयार है। मेरा नाम मोहम्मद अनवर शाह, मैं बिदर निवासी हूँ।